بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل مفعول ما لم یسم فاعلہ، یہ فصل ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ کے بارے میں۔ مرفوعات کی بحث ہم نے شروع کی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ مرفوعات کہتے ہیں ان الفاظ کو جن کے اوپر رفع پڑا جاتا ہے، پیش پڑا جاتا ہے، یعنی ان کے آخر میں جو حرکت آتی ہے وہ پیش کی آتی ہے، رفع کی آتی ہے۔ اور پورے کلام عرب میں جو مرفوع الفاظ ہیں، مرفوع اسماء ہیں، وہ ٹوٹل 8 ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم تھی وہ تھی فاعل، اس کی مکمل بحث ہم نے پڑھی، فاعل کی تعریف پڑھی، فاعل کے احکامات پڑھے، پھر اس کے بعد تنازع فعلان کی بحث پڑھی۔ آج ہم مرفوعات کی دوسری قسم کو پڑھ رہے ہیں، اور مرفوعات کی دوسری قسم ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ۔ بظاہر تو اس لفظ کا یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لمبا ہے نا، مفعول ما لم یسم فاعلہ، لیکن اس کا جو دوسرا نام ہے وہ بالکل آسان ہے، وہ ہے نائب فاعل۔ دوسرا اس کا نام کیا ہے؟ نائب فاعل۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ کا معنی بھی سمجھ لیں کہ مفعول ما لم یسم فاعلہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ کا معنی ہوتا ہے ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے۔ ما کا معنی ہے جس کے، اور لم یسمى ذکر نہ کیا جائے، فاعلہ فاعل کو، تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ ایسا مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ بہت سارے مقامات پر فاعل کو ذکر نہیں کرتے اپنی مثالوں میں۔ مثال کے طور پر اس کی 2-3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے اس کی آواز سے، اس کی شکل و صورت سے کہ اس کو مار پڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں زید کو مارا گیا، امر کی مدد کی گئی۔ اب مدد کرنے والا کون ہے اس کا آپ تذکرہ نہیں کرتے، مارنے والا کون ہے آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، تو اس کو بولتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، کہ مفعول کو تو ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اور فاعل کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، فاعل کو ذکر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ مثلا فاعل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، یا آپ کلام کو مختصر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ سامنے والے کو میری بات سے معلوم ہو جائے گا کہ فاعل کون ہے، تو آپ فاعل کا ذکر نہیں کرتے، بس آپ مفعول کا ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل یہ وہاں پر ہوتے جہاں فعل مجہول ہو۔ فعل کی 2 قسمیں ہیں نا، فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف جس میں فاعل کو ذکر کیا جائے، اور فعل مجہول جس میں فاعل کو ذکر نہ کیا جائے۔ تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ وہاں پر آئے گا جب آپ فاعل کو ذکر نہیں کریں گے، فاعل کی جگہ مفعول کو لے کر آئیں گے۔ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کیا جائے، وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ، اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام بنا دیا جائے، نحو جیسے ضُرِبَ زید، زید کو مارا گیا۔ وحکمه فی توحید فعله وتسمیته وجمعه وتذکیره وتانیثه علی قیاس ما عرفت فی الفاعل۔ اب یہاں سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا پھر نائب فاعل اس کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پیچھے جو آپ نے فاعل کے احکامات پڑھے ہیں کہ فعل کو کب مفرد لایا جاتا ہے، کب تثنیہ لایا جاتا ہے، کب جمع لایا جاتا ہے فاعل کی وجہ سے، اور اسی طرح فعل کو کب مذکر لایا جاتا ہے، کب مؤنث لایا جاتا ہے، یہ تمام بحث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہی والی بحث مفعول ما لم یسمى فاعلہ پر بھی لاگو ہوگی، دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ فعل کب مفرد آتا ہے، کب تثنیہ آتا ہے، کب جمع آتا ہے فاعل کی وجہ سے، فعل کب مؤنث آتا ہے، کب مذکر آتا ہے فاعل کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں نائب فاعل کے وہی احکامات ہیں جو پیچھے آپ فاعل کے اندر پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم دوبارہ ذکر نہیں کریں گے۔ وحکمہ، وحکمہ
और नायब फाइल का हुक्म फी तौहीद फ़िअलिही, फेल के मुफरद लाने में, उसके फेल के मुफरद लाने में, व तस्नियत ही, और फेल के तस्निया लाने में, व जमअ ही, और उसके जमा लाने में, व तज़कीर ही, व तानीसी, और उसके मुज़क्कर मुअन्नस लाने में, अला क़यासिन, उसी तरह है। अला क़यासिन का तर्जुमा क्या करेंगे, उसी तरह है। और उसका हुक्म फेल को मुफरद लाने, तस्निया लाने, जमा लाने, मुज़क्कर लाने, मुअन्नस लाने में, अला क़यासिन, उसी तरह है। मा अरफ्ता, जिस तरह आप पहचान चुके हैं, फिल फ़ाइल, फ़ाइल की बहस में। फस्लुन अल मुब्तदा वल खबर, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह मरफूआत की तीसरी और चौथी किस्म को बयान फरमा रहे हैं। बड़ी मशहूर किस्म है मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, ये मरफूआत की तीसरी और चौथी किस्म है। अब मुब्तदा और खबर कहते किसको हैं, तो याद रखें, मुब्तदा और खबर उन दो इसमों को कहा जाता है जो अवामिल लफ्जी से खाली हों। आवामिल, आवामिल आमिल की जमा है ना, आमिल कहते हैं अमल करने वाला। और नहव की इस्तिलाह में अमल करने वाला वो होता है जिसकी वजह से किसी लफ्ज को जबर, जेर या पेश मिलती है। तो अवामिल की फिर दो किस्में, एक होते हैं अवामिल लफ्जी, यानी लफ्जों में वो मौजूद होते हैं। देखे ना, दुश्मन दो तरह का होता है ना, एक वो दुश्मन होता है जो सामने आपको नजर आ रहा होता है, वो आप पर कोई असर अंदाज होता है, तो उसका असर अंदाज होना आपको नजर भी आता है। कभी वो आपको चोट लगाता है, कभी जख्म लगाता है, तो वो नजर आ रहा होता है। और कभी दुश्मन ऐसा होता है कि वो आप पर चोट मार रहा होता है, नुकसान दे रहा होता है, नजर आपको नहीं आता। और यही मिसाल दोस्त की भी है। बाज दोस्त ऐसे होते हैं वो आपको फायदा पहुंचा रहे होते हैं, आपके सामने मौजूद होते हैं। और बाज दोस्त ऐसे होते हैं आपको फायदा तो वो पहुंचा रहे होते हैं लेकिन वो आपकी नजरों के सामने नहीं आते। तो यही आमिल लफ्जी और आमिल मानवी। आमिल लफ्जी वो होता है जो सामने नजरों में होता है, नजर आ रहा होता है कि यार ये आमिल है जो कि इस लफ्ज को पेश दे रहा है, इसको जेर दे रहा है, इसको जबर दे रहा है। और आमिल मानवी वो होता है जो छुपा हुआ होता है, छुपे हुए दोस्त की तरफ फायदा तो देता है जबर जेर पेश का, लेकिन वो नजर नहीं आता। वहुमा इस्मानी, मुब्तदा और खबर दो इसम है, मुजर्रदानी जो खाली होते हैं, अनिल अवामिल लफ्ज़ियती, अवामिल लफ्ज़िया से। अहदुहुमा, उनमें से एक मुस्नदुन इलैहि, मुस्नद इलैह होता है, व युसम्मल मुब्तदा, और उसका नाम रखा जाता है मुब्तदा। वसानी मुस्नदुम बिही, और दूसरा मुस्नद बिही होता है, व युसम्मल खबर, और उसका नाम रखा जाता है खबर। नहवु, जैसे ज़ैदुन काइमुन, वल आमिलु फीहिमा मानवियुन, और आमिल इन दोनों के अंदर मानवी होता है। यानी माने के एतबार से हम कह देते हैं कि चूंकि इनका माना मुब्तदा और खबर वाला है और ये शुरू कलाम में आते हैं, इसलिए हम इनको क्या पढ़ेंगे, मरफू, क्योंकि एराब के अंदर जो असल एराब है वो रफा है। एराब के अंदर जो असल एराब है वो क्या है, रफा। तो जब कोई और एराब का सबब नहीं होगा तो फिर हम उस लफ्ज को क्या पढ़ेंगे, मरफू पढ़ेंगे। तो चूंकि मुब्तदा और खबर कलाम के शुरू में आ जाते हैं और बज़ाहिर इनके अंदर कोई आमिल नहीं होता और एराब में असल है रफा, तो हम इसके ऊपर क्या पढ़ देते हैं, रफा। और हम कहते हैं इसके अंदर जो आमिल है वो आमिल मानवी है, यानी इनका माना। और इनका माना क्या है, कलाम के शुरू में आ जाना। फल आमिल फीहिमा मानवी, और आमिल इन दोनों में मानवी है और वो है इब्तिदा। व अस्लुल मुब्तदाई, यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह मुब्तदा और खबर से मुतालिक ज़ाब्ता और कायदा बयान फरमा रहे हैं। याद रखें कि ये कायदा और ज़ाब्ता जो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं, ये अक्सरी कायदा है, कुल्ली नहीं है। अक्सरी कायदा वो होता है कि जो अक्सर मकामात पर लग जाता है, और कुल्ली कायदा वो होता है कि वो हर जगह लगता है, कहीं भी वो अपने आप को पीछे नहीं हटाता, वो हर जगह वो ज़ाब्ता और उसूल लगता है। और अक्सरी वो होता है कि कभी लग गया कभी ना लगा। तो ये अक्सरी कायदा है, कुल्ली कायदा नहीं है। वो ये है कि मुब्तदा मारफा होता है और खबर नकरा। लेकिन कभी कभी इसका उल्ट भी हो जाता है, यानी खबर जो है वो मुब्तदा जो है वो भी नकरा हो जाएगा। वैसे तो मुब्तदा मारफा होता है लेकिन कभी मुब्तदा क्या हो जाता है, नकरा भी हो जाता है। लेकिन मुब्तदा नकरा हो तो इसके कुल 6 मकामात हैं। मुब्तदा क्या हो, नकरा हो, तो इसके कुल कितने मकामात हैं, 6 मकामात हैं।
6 मकामात के अंदर मुबतदा नकरा होगा। मुसन्निफ ने सिर्फ उसकी मिसालें दी हैं, मुसन्निफ ने 6 मिसालें दी है कि जहां पर नकरा मुबतदा बनेगा, मारफा नहीं होगा, वो नकरा क्या बन जाएगा, मुबतदा बन जाएगा। 6 मिसालों में से पहली मिसाल है वाला अब्दुन मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। इस मिसाल में अब्दुन ये नकरा है और ये मुबतदा है, और खैरुम मिन मुशरिकिन ये खबर है। अब देखिए यहाँ पर नकरा मुबतदा है। अब ये पहला मकाम है जहां पर नकरा मुबतदा बन रहा है, और ये मकाम ये है कि जब आप नकरे की सिफत जिक्र कर दें, नकरा क्या आ जाए, अपनी सिफत के साथ आ जाए, तो फिर आप नकरे को मुबतदा बना सकते हैं। पहला मकाम ये है कि नकरा मुबतदा बनता है कब, जब नकरे के साथ उसकी क्या आ जाए, सिफत। जैसे आबद के साथ यहाँ पर मोमिन सिफत आई हुई है, आबद के साथ यहाँ पर मोमिन क्या आई हुई है, सिफत। आबदुम मोमिनुन, यकीनन मोमिन गुलाम, खैरुम में मुशरिकिन, मुशरिक से बेहतर है। तो अब इस मोमिन की वजह से आबद जो कि नकरा था उसके अंदर तखसीस आ गई। वो तखसीस किस तरह आई कि पहले आबद का लफ्ज आम था, उसमें काफिर गुलाम भी शामिल था, यहूदी भी शामिल था, ईसाई भी शामिल था, मुसलमान भी शामिल था। लेकिन जब आपने कहा कि मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक गुलाम से, तो अब बाकी सारे गुलाम निकल गए, सिर्फ कौन सा गुलाम बच गया, मोमिन गुलाम। तो इसमें तखसीस आ गई। नकरा के अंदर जब तखसीस आ जाए तो वो नकरा मुबतदा बन जाता है, तो नकरा क्या बन जाता है, मुबतदा बन जाता है। ये पहला मकाम है। दूसरा मकाम, दूसरे मकाम की तरह मिसाल देखें, अर्रजुलुन फिद्दारी अम इमराअतुन। अर्रजुलुन फिद्दारी अम इमराअतुन, इस मिसाल में रजुलुन ये मुबतदा है जबकि ये नकरा है। रजुलुन क्या है, मुबतदा, जबकि ये है क्या, नकरा। ये दूसरा मकाम है जहां पर नकरा मुबतदा बनता है, और ये मकाम ये है कि जब नकरा हमजा इस्तिफहाम के बाद आ जाए और उसके बाद अम मुत्तसिला हो। अम की दो किस्में, अम मुनक़तिआ और अम मुत्तसिला। अम मुत्तसिला वो होता है कि जो तायीन के लिए आता है कि ये काम हुआ है या ये काम हुआ है। मुतकल्लिम सवाल करता है, मुखातब उसका जवाब देता है कि इन दो कामों में से ये हुआ है। जैसे आप कहते हैं अर्रजुलुन फिद्दारी अम इमरातुन, कि घर में या तो मर्द है या फिर औरत है, आप मुझे बताएं कि घर में मर्द है या औरत है। तो मुतकल्लिम ने सवाल किया, मुखातब बता देगा कि औरत है या मर्द है। अब यहाँ पर देखिए हमजा इस्तिफहाम का शुरू में और बाद में अम है, अम, और ये अम मुत्तसिल है क्योंकि ये दो चीजों में से किसी एक की तायीन के लिए आ रहा है। तो दूसरा मकाम ये है कि नकरा को आप मुब्तदा बनाएंगे कब, जब वो हमजा इस्तिफहाम के बाद आ जाएगा और उसके बाद अम मुत्तसिला होगा। उसकी मिसाल भी सामने आ गई। तीसरी मिसाल, तीसरी मिसाल है मा अहदुन खैरुम मिनका। मा अहदुन खैरुम मिनका, यहाँ पर अहदुन मुबतदा है, अहदुन ये क्या है, मुबतदा, जबकि ये नकरा है। अब यहाँ पर नकरा कौन से मकाम में मुबतदा बन रहा है, यहाँ पर नकरा कौन से मकाम पर मुबतदा बन रहा है, वो मकाम ये है कि जब नकरा तहत नफी हो, यानी नकरा नफी के बाद आ जाए। नकरा किसके बाद आ जाए, नफी के बाद आ जाए, तो फिर वहां पर नकरा मुबतदा बन जाता है। जैसे अहदुन यहाँ पर नफी के बाद, माँ नाफी है ना, उसके बाद आ रहा है, तो ये मुबतदा बन जाएगा। नंबर 4, नंबर 5, पांचवी मिसाल है शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन। शर्रुन, शर्रुन का माना है उस्ताद बड़े साहब ये शर। तीसरी मिसाल नहीं समझ आई। जी तीसरी क्या मिसाल कह रहे समझ हैं, नहीं आई, तीसरी मिसाल क्या, तीसरी मिसाल नहीं समझ आई है, अहदुन वाली क्या बताया आपने। तीसरी मिसाल समझ नहीं आई। वमा तीसरी अहदुन मिसाल समझ में खैरुम नहीं आई। मिनका, ये है तीसरी मिसाल। इस मिसाल में अहदुन ये मुबतदा है, अहदुन, और खैरुम मिनका ये खबर है। खैरुम मिनका ये क्या है, खबर। और तीसरी मिसाल है इस चीज की कि जब नकरा नफी के बाद आ जाए। माँ नाफिया है, अहदुन नकरा है, नकरा जब भी नफी के बाद आएगा तो वो मुबतदा बनेगा। नकरा जब भी नफी के बाद आएगा वो क्या बन जाएगा, मुबतदा बन जाएगा। जैसे माँ अहदुन खैरुम मिनका, अब यहाँ पर नकरा अहदुन है और ये नफी के बाद आ रहा है, आसान सी मिसाल है। चौथी मिसाल, बल्कि ये पांचवी होगी शायद, या चौथी है, चौथी, ठीक है।
शर्रुन अहर्रा ज़ानाबिन, यहाँ पर शर्रुन मुब्तदा है, अहर्रा ज़ानाबिन ये इसकी खबर है। ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे का पहले तर्जमा देख लें। शर्रुन बड़े शर ने, अहर्रा भौंकने पर मजबूर किया, ज़ानाबिन कुत्ते को। शर्रुन बड़े शर ने, अहर्रा भौंकने पर मजबूर किया, ज़ानाबिन कुत्ते को। याद रखें उस वक्त भी आप नकरा को मुब्तदा बना सकते हैं जब नकरा की सिफत महजूफ हो, जब नकरा की सिफत क्या हो, महजूफ। यहाँ शर्रुन की सिफत अजीमुन महजूफ है, और कुरान मजीद में इसकी बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ मौसूफ की सिफत को क्या कर दिया गया है, हज़फ कर दिया गया। मौसूफ को जिक्र किया गया लेकिन उसकी सिफत जिक्र नहीं की गई बल्कि उसको हज़फ कर दिया गया। और यहाँ पर बतौर मुहावरे के मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ये मुहावरा जिक्र किया है, क्योंकि किसी भी जुबान को समझने के लिए उसके मुहावरात को जानना भी जरूरी होता है कि वो अपने मुहावरात को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मुहावरा जितना मुख्तसर हो उतना अच्छा लगता है। तो असल में ये इबारत थी शर्रुन अजीमुन, बड़े शर ने, बड़े मसले ने, अहर्रा मजबूर किया भौंकने पर, ज़ानाबिन कुत्ते ने। बड़ा शर मिसाल के तौर पर घर में चोर घुस आए, घर में डाकू आ गए, घर में कोई दुश्मन आ गया, ये बड़ा शर है, बड़ा मसला है जो कुत्ते को भौंकने पर क्या करता है, मजबूर करता है। मतलब ये है कि कुत्ता वैसे नहीं भौंका, बसाओं का कुत्ता मालिक के आने पर भी भौंकता है लेकिन वो शर नहीं होता, वो खैर होता है। मालिक के आने पर भी कुत्ता भौंकता है लेकिन वो प्यार से भौंक रहा होता है। और एक है शर की वजह से कुत्ता भौंके, और शर भी शर्र अजीम हो। तो यहाँ पर जो शर है ये मौसूफ है, इसकी सिफत क्या है, महजूफ। तो चौथा मकाम ये है कि जब आप मौसूफ की सिफत को हज़फ करें तो उस वक्त भी नकरा को आप मुब्तदा बना सकते हैं। पांचवा मकाम यह है कि जब आप नकरा को मुकद्दम कर दें और जार मजरूर को मुअख्खर कर दें, नहीं, जार मजरूर को मुकद्दम कर दें और नकरा को मुअख्खर कर दें, तो वहां पर भी नकरा के अंदर तखसीस आ जाती है और वो मुब्तदा बन जाता है। क्योंकि अरबी जुबान का ये उसूल और ज़ाब्ता है कि जब आप मुकद्दम को मुअख्खर और मुअख्खर को मुकद्दम करते हैं तो कलाम के अंदर तखसीस आ जाती है। इसकी आसान मिसाल, जैसे आप सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका ये मुकद्दम है जबकि इसका असल मकाम था नाबुदू के बाद, और नाबुदू मुअख्खर है जबकि उसका असल मकाम था इय्याका से पहले। अब ये तकदीम और ताखीर क्यों की गई, कलाम के अंदर तखसीस पैदा करने के लिए। नाबुदू इय्याका इसका माना था हम तेरी इबादत करते हैं, जब हो गया इय्याका नाबुदू इसका तर्जुमा होगा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मतलब तखसीस कर रहे हैं हम तेरे साथ इबादत की, तेरे अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते। तो ऐसे ही जब जार मजरूर नकरा से पहले आ जाए तो वहां पर भी तखसीस पैदा हो जाती है। जैसे फिद्दारी रजुलुन, इसका माना है कि घर में मर्द ही है। अगर हम यूं जिक्र करते हैं रजुलुन फिद्दारी, इसका तर्जुमा होता है कि घर में मर्द है, कलाम में तखसीस ना होती, आम कलाम होता। लेकिन जब आपने कहा फिद्दारी रजुलुन, फिद्दार को शुरू में ले आए, रजुलुन को बाद में ले आए, तो तखसीस आ गई कि घर में मर्द ही है। और ये ज़ाब्ता पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब जार मजरूर कलाम के शुरू में हो, नकरा बाद में हो, तो जार मजरूर खबर मुकद्दम बनता है और नकरा मुब्तदाए मुअख्खर बनता है, क्योंकि इससे कलाम में तखसीस आ जाती है। असल कलाम था रजुलुन फिद्दारी, लेकिन तकदीम और ताखीर करके बना दिया गया फिद्दारी रजुलुन, ताकि कलाम में तखसीस पैदा हो। नंबर 6, सलामुन अलैका। इस मिसाल में सलामुन मुब्तदा है जबकि वो नकरा है, और अलैका इसकी खबर है, अलैका इसकी क्या है, खबर। अब यहाँ पर सलामुन असल में था सलामी अलैका, मेरा सलाम हो आप पर, यानी सलाम नकरा असल में मुजाफ था या मुतकल्लिम की तरफ। मुतकल्लिम की जो जमीर है वो क्या कर दी गई, हज़फ कर दी गई। मुतकल्लिम की जो जमीर है वो क्या कर दी गई, हज़फ कर दी गई, कि मेरा सलाम हो आप पर, सलामुन अलैका, मेरा सलाम हो आप पर। तो जब मुतकल्लिम की जमीर थी जो कि हज़फ कर दी गई तो कलाम के अंदर क्या आ गई, तखसीस आ गई। पहले था कि मुतलकन आप पर सलाम हो, लेकिन जब मुतकल्लिम की जमीर को हम जिक्र करेंगे तो फिर इसका तर्जुमा क्या होगा कि मेरा सलाम हो आप पर, किसी और का नहीं बल्कि मेरा सलाम हो आप पर। तो ये 6 मकामात हैं जिन मकामात पर नकरा को आप मुब्तदा बना सकते हैं। अब विफाक के अंदर सवाल साहब ये ऐसे आएगा, सलामुन सलामुन विफाक अलैका के तो समझ अंदर, नहीं आया।
सलाम सवाल ऐसे आएगा सलामुन कि वो, अलैका दोबारा बताते हैं, समझ नहीं। इस पे बताएं। सलामुन अलैका की समझ नहीं आई, क्यों मुब्तदा है? अच्छा, सलामुन अलैका, सलामुन इसमें नकरा है और मुबतदा है, लेकिन इसके अंदर तखसीस मौजूद है, क्योंकि सलामुन असल में था सलामी अलैका, मेरा सलाम हो आप पर। या मुतकल्लिम की बतौर इजाफत के यहाँ पर मौजूद थी, जो कि मुजाफुन इलैह बन रही थी, लेकिन कलाम को मुख्तसर करने के लिए या इजाफत वाली को हजफ कर दिया गया। समझ में आया? जी ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब विफाक के अंदर सवाल ऐसे आएगा कि वो 6 मकामात जिक्र करें जिन मकामात में नकरा को मुबतदा बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसके मिसालें याद करें और हर मिसाल का पस मंजर देखें कि इस मिसाल में नकरा को क्यों मुबतदा बनाया गया है। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा समझ में आता जाएगा कि नकरा को मुबतदा बनाते हैं जब नकरा की सिफत मौजूद हो, नकरा को मुबतदा बनाते हैं जब नकरा हमजा इस्तिफहाम के बाद आ जाए और उसके बाद हम मुत्तसिला हो, नकरा को मुबतदा बनाते हैं जब वो नफी के बाद आ जाए, नकरा को मुबतदा बनाते हैं जब उसकी सिफत को हजफ कर दिया जाए, नकरा को मुबतदा बनाते हैं जब उससे पहले जार मजरूर को जिक्र किया जाए, नकरा को मुबतदा बनाते हैं जब उसके मुजाफ इलैह को हजफ कर दिया जाए। जी समझ में आ गया यहाँ तक? जी तलबा इकराम यहाँ तक समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।